DHCP server configuration. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It is a network protocol that is used to assign IP address automatically. Okay, it is a network protocol. It is present on the network. This DHCP protocol, it is used in network. Different protocols use होता है network में, like HTTP protocol पता है, that is used to access web pages और website access करने के लिए HTTP protocol is used, right? See this. Suppose I am let's open this page, Amazon website, any website. This is Amazon, okay. This is the address bar, address है Amazon का ये. HTTPS, HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. S means secure. और ये साइट का एड्रेस क्या है Amazon का? www.amazon.in. ठीक है. So like HTTP protocol जो है उसका यूज क्या है? यूज टू एक्सेस दी वेबसाइट और वेब पेजेस. Website or web pages. What is web pages? That page which is present on the internet. A website में क्या होता है? Collection of web pages होते हैं. Website क्या है? It is a collection of website is a collection of web pages. Different web ये website है. See, Amazon एक website है. इसमें different collection of web pages है. Like different section है ना? Amazon पे, mobile, fashion, electronics, new releases, prime, customer service. So different web pages present है. ठीक है, website का collection of web pages. So HTTP protocol is used to access the website or web pages. ठीक है. Now DHCP भी एक प्रोटोकॉल है. ठीक है. ये प्रोटोकॉल का यूज क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है. दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली. ठीक है, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है DHCP प्रोटोकॉल. Now see, DHCP simplifies IP address management. The primary reason of DHCP is needed is to simplify the management of IP addresses on network. See, we all know that no two hosts can have the same IP address. IP address is unique for each device. For each system, IP address is unique like a mobile number, right? No two hosts can have the same IP address. Okay, IP address is unique for each system. For each device, IP address is unique. Okay. So see, what is the requirement of DHCP? क्यों automatically assign? मतलब what is the advantage of DHCP? See, DHCP means कि it automatically assigns IP address. ठीक है. So what is the reason? What is the advantage of DHCP? मेन थिंग ये हम लोग को पता है कि नो टू डिवाइसेस हैव द सेम आईपी एड्रेस. सब डिवाइस के आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं. ठीक है. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइस मैन्युअली, सी दैट विल समटाइम्स एरर विल अकर. मैन्युअली समझ रहे हो, जैसे मैंने आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन कर रही हूँ मैं, लाइक सम यूजर इज मैन्युअली टाइपिंग द आईपी एड्रेस, मींस असाइन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है सिस्टम का. ठीक है. तो मींस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे असाइन करना होता है आईपी एड्रेस, राइट? तो इट विल लीड टू एरर सम टाइम. मैन्युअली असाइन करने में एरर भी हो सकता है. ठीक है. तो इवन ऑन स्मॉल नेटवर्क मैन्युअली असाइनिंग आईपी एड्रेस कैन बी कंफ्यूजिंग. अगर मैन्युअली असाइन करना है वन बाय वन, ये राउटर को, फिर ये राउटर को, फिर राउटर से सिस्टम डिवाइसेस कनेक्टेड है. वी हैव डन द प्रैक्टिकल आल्सो ना ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर. So sometimes even for the small network it may be confusing manually assign करना. Like we have done the labeling to avoid confusion. मतलब at the time of configuration, जब हम लोग configuration करते, configuration means when we are clicking on the PC, then we are assigning the IP address, then default gateway. So sometimes it may lead to error because we are human being, right? So manually assign में sometimes it may be confusing. ठीक है, हम लोग आईपी एड्रेस भूल गए या कुछ मिस्टेक हो गया. तो यहाँ पे DHCP का कॉन्सेप्ट आता है. सी
even on small networks, manually assigning IP address can be confusing, particularly with mobile devices that require IP addresses on a non-permanent basis. पर्टिकुलरली कहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, ये मोबाइल डिवाइसेस में। जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो नॉन परमानेंट बेसिस है, परमानेंट नहीं होता है। सी अभी मैं कोई फॉर एग्जांपल इफ आई एम कनेक्टेड टू दी वाईफाई, ठीक है, तो वाईफाई अभी मैं अपने एरिया में, तो मुझे वाईफाई का जो राउटर है, मेरा राउटर, उसका आईपी एड्रेस असाइन होगा। मीन्स अभी ये वाला रेंज में हूँ मैं, अगर मैं कोई दूसरे नेटवर्क में जाऊंगी, कोई कैफे में या कहीं पे और कोई एरिया में, ठीक है, वहां का उनका वाईफाई का सर्विस होगा, ठीक है। तो उधर क्या हो रहा है, मैन्युअली जैसे तुम्हारा मोबाइल कांटेक्ट में आ रहा है वो वाईफाई के रेंज में, ठीक है, अगर फ्री सर्विस है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, अगर पासवर्ड है तो आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड तुम वाईफाई से कनेक्ट हो जाओगे। तो मीन्स आई मोबाइल डिवाइस, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस में जो आईपी एड्रेस है वो नॉन परमानेंट बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता है। सो टू लोकेट आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस लोकेट करने के लिए क्या होना चाहिए, डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ऑटोमेटिक दिस प्रोसेस, ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिकली करने से, ऑटोमेटिकली असाइनिंग आईपी एड्रेस makes life easier for users and for the network administrator also. Network administrator means those who are handling the networking part, network जो हैंडल करता है, जो पर्सन हु इज हैंडलिंग द नेटवर्क, ठीक है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसका भी काम इजी हो जाएगा बाय यूजिंग द, अगर वो डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। नाउ वी विल सी प्रैक्टिकली कैसे इसको करना है हम लोग को डीएचसीपी। So let's open first Cisco Packet Tracer. Okay, Cisco Packet Tracer. फर्स्ट स्टेप क्या है, डिजाइन द नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क डिजाइन करो। तो लेट्स चेक, सी इन दिस सेक्शन क्या लिखा है, राउटर से ये, देन स्विचेस, हब से, सी सेकंड लाइन में मैं जा रही हूँ, एंड डिवाइसेस, सिक्योरिटी, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। तो लेट्स चेक वन स्विच, ये सेकंड वन स्विच है, स्विच यहाँ से सेलेक्ट किए, इसमें से नाउ जेनेरिक, ठीक है, एक स्विच लिया हम लोग ने। स्विच लेने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है एंड डिवाइसेस, नेक्स्ट लाइन में इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, लैपटॉप है, सर्वर है। तो नाउ आई विल टेक वन, ये वाला, यहाँ पे देखो थर्ड वाला क्या है, ये सर्वर, नीचे लेबलिंग आ रहा है, इफ यू आर प्लेसिंग द माउस एरो ऑन दिस सिस्टम, देखो सर्वर पीटी लिखा है, तो सर्वर सेलेक्टेड, ठीक है। नाउ मैं क्या लूंगी, डिफरेंट सर्वर है एक, सर्वर स्विच से कनेक्ट है, नेटवर्क कैसे मिलता है हम लोग को, सर्वर से ना, सर्वर से स्विच कनेक्ट है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, राइट, राउटर स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है ना, उसके हेल्प से ही हम लोग को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो सर्वर से स्विच, सर्वर है एक प्रेजेंट समझो, स्विच है, और स्विच से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट है, डिफरेंट डिवाइसेस। नाउ वी विल टेक यहाँ से इन द सेकंड लाइन एंड डिवाइसेस आ रहा है ना, ये फर्स्ट वाला, इसमें से इज फर्स्ट वन पीसी, एक फर्स्ट पीसी, देन अगेन दो पीसी ले लिए, अगेन सेलेक्टेड, थ्री पीसी हो गया, और एक लैपटॉप लेंगे, सेकंड वाला लैपटॉप है, नीचे लिखा है देखो लैपटॉप, ये हो गया। देन डू द कनेक्शन, इसको केबल से कनेक्ट कर दो, ये कनेक्शन वाला सिंबल है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कनेक्शन,
तो ये क्लिक करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे, डिफरेंट केबल्स. तो वी विल टेक दिस फर्स्ट वन, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप. So now it is selected, you can see ये selected है. कनेक्ट करो. The cable cannot be connected to that port, ऐसा आ रहा है ना. ओके तो कोई बात नहीं, ये कैंसिल है, कैंसिल हो गया. वापस से नाउ विल ट्राई दिस फर्स्ट वन, पीसी 0 से स्विच 0. नहीं हो रहा है, ये कैंसिल कर दो. अगर नहीं हो रहा है तो कैंसिल. फिर अगर कभी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, अभी कैंसिल ही आ रहा है वापस से. तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड है ना, वापस डी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे करो, डी सिलेक्ट हो गया. ठीक है. क्लिक ऑन सर्वर, केबल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना. सर्वर, सर्वर में यहाँ पे देखो, लिंक अगर कभी कनेक्ट नहीं हो रहा है केबल, तो व्हाट वी हैव टू डू, मॉड्यूल, हाँ ये फर्स्ट में ही रहना है बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है. इसमें क्या करना है, ये जो तुम्हारा दिख रहा है केबल कनेक्शन के लिए, यहाँ पे केबल्स कनेक्शन के लिए पोर्ट्स अवेलेबल है, डिफरेंट पोर्ट. ये उठा के जस्ट कहीं पे भी प्लेस कर दो, प्लेसिंग इट हियर. ठीक है, प्लेस हो गया. नाउ लेट्स ट्राई जूम आउट, जूम इन. सी अगेन, सी बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है. यहाँ पे जो ये दिख रहा नहीं सिंबल, इससे पहले ऑन करना है. अगर तुम ऑफ में डालोगे समझ में नहीं आएगा हो रहा है नहीं हो रहा है. फर्स्ट क्या है, बेटर उसको ऑन करो, ऑन करने के बाद प्लेस करो. ठीक है, नाउ सी अगर कनेक्ट हो रहा है क्या. The cable cannot be connected to the port. Okay, ये कैंसल से हो रहा है क्या. So let's change the switch. ये मैं कैंसिल कर रही, टेक अनदर स्विच. नाउ विल ट्राई. कनेक्ट हो गया ये वाला. ठीक है, जो कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्ट कर दो पहले. PC2 से स्विच, PC1 से, देन ठीक है ये हो गया. ये नहीं हो रहा है. सी क्या करना है उसके लिए, डोंट क्लिक ऑन सर्वर, क्लिक ऑन स्विच. अब ये क्रॉस ही आ रहा है ना, एक बार क्रॉस लिए तो वही, तो ये ऑप्शन से मुझे बैक जाना है, डी सिलेक्ट करना है मतलब. तो ये इधर पे क्लिक करो, क्लिक ऑन स्विच. स्विच में क्या करना है, जूम आउट, जूम इन, बड़ा करो. सी ये जो है यहाँ से उठाओ पोर्ट और ये सॉकेट में प्लेस कर दो. कैनॉट ऐड अ मॉड्यूल, क्या दिखा रहा है, अगेन सी क्या लिखा है. ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ मैं. यहाँ सेकंड वाले में देखते. सी क्या लिखा है, कैनॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन. कैन यू सी दिस, ये ऑन है, ग्रीन, लाइट ग्रीन. अभी देखो मैं ऑन करती, अभी दिख रहा है लाइट ग्रीन, ये ऑन है, पावर अभी ऑन है. बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन. तो उसको क्या करना है, पहले ऑफ करो. तो जस्ट क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा. नाउ यू कैन ऐड द मॉड्यूल, यहाँ पे ऐड हो गया, सब में ऐड कर दो. उसके बाद देखो, नाउ ट्राई टू कनेक्ट स्विच विथ सर्वर. कनेक्ट हो गया अभी. तो कभी भी कनेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, स्विच पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन दी स्विच. और ये जो पोर्ट है यहाँ से उठा के सीरीज, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, ग्रीन, ये दिखा लाइट ग्रीन, बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा. पहले उसको ऑफ करो क्लिक करके,
देन जस्ट प्लेस द, ये जो पोर्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट में प्लेस करके हो गया, देन केबल कनेक्ट कर दो। ठीक है, सो केबल कनेक्शन हो गया। अभी ओनली वी हैव डिजाइन द नेटवर्क, सिर्फ डिजाइन हुआ है अभी। हाँ, अभी क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू डू द डीएचसीपी। डीएचसीपी करना है ना, प्रैक्टिकल डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डीएचसीपी में देखो क्या करना है, क्लिक ऑन द सर्वर, क्लिक ऑन द सर्वर। सर्वर में डेस्कटॉप में जाना है, सर्वर में डेस्कटॉप में जाना है। देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस सेट करो सर्वर का 192.168.1.2। ठीक है, देन सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, उसके बाद में डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे मैं नहीं सेट करूंगी, मेरे सर्वर का कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ आईपी एड्रेस सर्वर का, और यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया, बिकॉज दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास, कौन से क्लास को बिलोंग करता है आईपी एड्रेस? कैन एनीवन आंसर? दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास ए, बी और सी? यस राइट, क्लास सी। तो क्लास सी आईपी एड्रेस जो है, क्लास सी का जो सबनेट मास्क है यही होता है 255.3 टाइम्स 255 एंड 0। ओके, तो जस्ट सी, फर्स्ट स्टेप क्या है, अगेन आई एम शोइंग, क्लिक ऑन सर्वर, डेस्कटॉप सेक्शन में जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेट द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर एंड द सबनेट मास्क। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इसी पर रहना है सर्वर में, सिर्फ सेक्शन चेंज करो, कॉन्फ़िग में जाओ, सर्विसेज में, कॉन्फ़िग नहीं, सर्विसेज में जाना है, क्लिक ऑन डीएचसीपी, क्लिक ऑन डीएचसीपी। सर्वर में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, एचटीटीपी, डीएचसीपी, डीएनएस। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, डीएचसीपी। तो क्लिक ऑन डीएचसीपी। डीएचसीपी में सर्विस ऑन और ऑफ है, सर्विस ऑन एंड ऑफ। तो क्या करूंगी मैं, सर्विस ऑन, सर्विस क्या करना है, ऑन करना है। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी दिस, बाय डिफॉल्ट क्या ऐड है, सर्वर पूल डिफॉल्ट गेटवे, बाय डिफॉल्ट ये ऐड है, जो पहले से ऐड है। तो यू कैन, मतलब ये रहने दो, उसको कुछ नहीं करना। सर्विस ऑन किए, सर्विस ऑन करने के बाद पूल नेम, सर्वर पूल ऑलरेडी है तो कुछ और ले लो, P1। डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे वही रहेगा जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, 192.168.1.2। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करना है मुझे, क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड हो गया P1 डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, इतना ही ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर्वर में जस्ट हम लोग ने क्या किए, 2 स्टेप्स किए, सर्वर का आईपी एड्रेस सेट किए और डीएचसीपी सर्विस ऑन करे, और डीएचसीपी के अंदर डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे में सर्वर का आईपी एड्रेस, क्योंकि सर्वर ही डिफॉल्ट गेटवे, ये सब डिवाइसेस के लिए, फॉर ऑल द डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड टू दिस स्विच। कितने डिवाइसेस है, 4 डिवाइसेस, PC0, PC1, PC2 and laptop. So these 4 devices, for these 4 devices, default gateway is server. Default gateway is server means जो पैकेट है, जो है पैकेट जो है ट्रैवल कैसे होगा, सर्वर के पास ही जाएगा। गेट जो है उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे, एक गेट है सर्वर। ठीक है, तो सर्वर इज अ डिफॉल्ट गेटवे हियर। नाउ सिंपल स्टेप से क्लिक ऑन PC0, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जब तुम जाओगे, डेस्कटॉप, अगेन सी पीसी, डिफरेंट सेक्शन है ना, डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डीएचसीपी और स्टैटिक, स्टैटिक में हम लोग मैन्युअली सेट करते हैं आईपी एड्रेस, स्टैटिक में मैन्युअली यू कैन सेट। ठीक है, और डीएचसीपी में नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन डीएचसीपी, आई हैव क्लिक्ड आल्सो ऑन डीएचसीपी।
सी क्या होता है अभी? सब में क्लिक, PC1, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP। सर्विसेज ऑन किए ना हम लोग ने, सर्विसेज, सर्वर में DHCP सर्विस इज ऑन, DHCP सर्विस इज ऑन। ये वाला मैं रिमूव कर रही हूँ, सर्वर पूल, सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन रिमूव। रिमूव नहीं हो रहा है, ओके, क्लिक ऑन सेव। लैपटॉप, डेस्कटॉप, DHCP। दीज आर द स्टेप्स, यही किए ना हम लोग ने सर्वर पे। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, सर्वर का आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। देन सर्विसेज टैब में DHCP सर्विस ऑन करना है। डिफॉल्ट गेटवे का वही आईपी एड्रेस रहेगा जो सर्वर का आईपी एड्रेस है। देन सर्विसेज टैब में ऐड में क्लिक करना है, क्लिक ऑन ऐड। सर्वर पूल 192.168.1.2। It is taking time to configure, so again we will do it. See, डेस्क कहाँ क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, सर्वर, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे स्टैटिक सेट करना है। हाँ, सर्वर पे 192.168.1.2, ठीक है। देन ये हुआ। सर्विसेज में DHCP सर्विस ऑन, ऑफ करो एक बार, अगेन ऑन। ये पहले वाला डिलीट कर रही हूँ मैं, P1 रिमूव। लेट्स टेक अनदर नेम, सर्वर पूल 1, डिफॉल्ट गेटवे 192.160, सॉरी 168.1.2। स्टार्ट आईपी एड्रेस में भी सेट कर दो 192.168.1.2। सबनेट मास्क 255, 255, 255, 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स बाय डिफॉल्ट खुद से लेगा वो। क्लिक ऑन ऐड बटन। इनवैलिड आईपी एड्रेस एंटर्ड फॉर DNS सर्वर, कहाँ पे ऐड किया हमने? सर्वर का 1 सेकेंड। हाँ, दिस इज सर्विसेज टैब, डेस्कटॉप, DNS server, see 0.0.0.0. So now try it, click on add। कहीं डॉट एक्स्ट्रा हो गया है क्या? चेक करो, क्यों नहीं ले रहा है ये 192.168.1.2। कहाँ है हमारा PDF पे? बस स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 1.0 से स्टार्ट करें। Enter valid number of users, valid range is 1265535।
सर्वर पूल, ये चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली 192.168.1.2 ऐड पूल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है 1 कर दो। सी नाउ इट इज एडेड,